Hello, my dear friends. My name is Amjad, and I'm a civil servant by profession. But deep rooted inside me is the passion of teaching. Okay, as the prelims of Jammu and Kashmir Administrative Services 2025 is approaching, it is just maybe 20 days away. So, as a civil servant and as a civil services trainer and mentor for past more than a decade, I felt it very important to discuss with you people that what shall be the strategy of all of you for these next 20 days. How you should approach the exam, what shall be the strategy for next 20 days, what you should do and what you should avoid doing. Okay, so about civil services, it has been always said that it is not more important than what you should read, it is what you should avoid. In the same way for examination also, 1 day, 10 days, 7 days, 50 days, 100 days before the examination, what you should avoid doing is more important than what you should be doing. Okay, so that's why first of all, I would discuss what you should not do. So, which means that I will focus on don'ts first. Okay, do's and don'ts. Then I will tell you what you should do. The do's I will discuss later, but first I will discuss what you should not do. Okay, what you should not do. Okay, please understand that nothing is going to change in these 20 days. These 20 days are not going to change your result. Okay, yeah. These 20 days, if not managed well, they may harm you. But definitely if you have not studied throughout the year, these 20 days are not going to help you cracking prelims examination. Okay, so in don'ts, the first thing which you should do is don't panic. Okay, don't panic. Why? Because some people have a habit of getting this anxiety when exam approaches near. Okay, so to calm yourself, tell your mind that nothing is going to change it in these 20 days. But if you have read throughout the year and you started panicking at the last, that may harm you. Definitely 20 days are not sufficient to crack prelims, but if you have worked throughout the year, these 20 days are sufficient to do whatever you can do for cracking the exam. So first thing is stay calm, don't hurt yourself, don't get the anxiety of exam. It will come on its time. The questions, if they will be easy, they'll be easy for all. If they'll be tough, they will be tough for all. Accordingly, merit will drop. Train your mind that panic will not help. Okay, that is the first thing. Second thing, don't read new things. Don't read new things now. Why? Because exam papers are already ready. Okay, so no need to read new things, new current affairs. Okay, but one thing is very, very important, that when I say new things, even if some chapters altogether you have left from your syllabus, don't try to read them, because that reading afresh takes so much of time and you are left with meager time. So don't read new things now. It is not a time to read anything new. Okay, the third thing is that don't be disloyal. This is very, very important point. Disloyal means don't first of all show disloyalty to your hard work. Throughout year you have worked very, very hard. If you started panicking, showing anxiety, means you are disrespecting your hard work which you have done throughout the year. Number one. Number two, when you are reading economy, don't think of polity. Okay, be loyal to economy itself. Okay, solve economics questions. When you are done with economics, then take up polity and don't think of economics. What happens when you are closer to examination, you are reading one subject, thoughts of other subject peep into the mind. I don't remember history, I don't remember revolt of 1857, I don't remember art and culture, and on the other hand you are reading geography. It means you are not being loyal to history, you are not being loyal to geography. Be loyal, whatever subject you are revising, think about that very subject only. If you started thinking about other subjects, that will increase your anxiety, because abruptly you cannot remember things from other subject while reading another subject. Get the point? So don't be disloyal to the subjects. Inter-subject studies shall not be done. Read only one subject, focus on that, don't think of other subjects. If other subjects come to your mind, it means वो आपको divert कर रहा है, वो आपको बेवफाई की तरफ ले जाता है. वफा के इनाम होते हैं, बेवफाई का कोई इनाम नहीं होता. इकोनॉमिक्स के साथ जब पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स ही पढ़ो, उसी के साथ वफा करो, पॉलिटी का मत सोचो, वरना पॉलिटी के दिमाग में आएंगे थॉट, मैंने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा, उधर से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो दोनों जगह आपका फोकस नहीं है. ठीक है. उसके बाद चौथा, वाटर टाइट शेड्यूल मत बनाओ.
कि आज मुझे दिन में इतना करना है। जब आप वाटर टाइट शेड्यूल बनाओगे तो दिन में अगर वो नहीं कर पाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एंजाइटी फर्दर बढ़ जाएगा। डोंट मेस विद शेड्यूल नाउ, द टाइम इज गॉन। ठीक है, तो दिन में रियलाइजेबल टारगेट्स बनाओ, जब वो अचीव करोगे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे और वो अचीव नहीं होंगे, आप कंसिस्टेंटली डिमोटिवेट होता चले जाओगे। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट डिमोटिवेटेड, सो डोंट मेस अप विद द शेड्यूल। ओके, स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर यहां से क्वेश्चन आ गया, अगर वहां से क्वेश्चन आ गया, जहां से क्वेश्चन आना है वो आ जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओनली आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, ओनली आपका जो रेस्टलेसनेस बढ़ेगी और उससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कभी भी कोई नई बात सुन रहे हो, आज आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सुन लिया, आप बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, प्रीलिम्स में क्या होगा मेरा। डोंट पे एनी हीड टू न्यू थिंग, न्यू कॉन्सेप्ट। अब जो भी नई चीज सुनोगे ये कंसीडर करके चलो कि वो एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आपने नहीं सुना। ओके, सो डोंट पे हीड टू एनीथिंग न्यू। कोई भी नई चीज आ जाती है सामने, छोड़ो, वो सिलेबस में ही नहीं था, वो एग्जाम में ही नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे टू एस्केप। अगर अब आ भी गया एग्जाम में और उसी एक चीज की वजह से आप फेल हो गए तो अगले साल उसको पढ़ लेना। और एक चीज कभी भी आपको फेल नहीं कर सकती, इसलिए इस चीज को कैसे कनकर करना है कि हाँ ये चीज नहीं मुझे पता है, ओके ये तो सिलेबस में ही नहीं है, अच्छा अगर है भी सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, डोंट पे हीड टू एनीथिंग न्यू, क्योंकि अक्सर हम क्या होता है एग्जाम के पास नई चीजें सुनते हैं और फिर बुक स्क्रॉल करते हैं, ये कहां पे है, कौन से टॉपिक में है, कौन से एरिया में। नो, लीव इट, जस्ट लीव इट। ओके, नाउ लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट ओवर emphasize करंट अफेयर्स। अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट करंट अफेयर्स। अंडर एस्टिमेट मतलब ये सोचना ही नहीं है कि करंट अफेयर्स छोड़ दें, लेकिन ये भी नहीं सोचना कि करंट अफेयर्स नहीं आता तो पेपर क्रैक नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड देखोगे, जब से मैं देख रहा हूं ट्रेंड सिविल सर्विसेज का, 60 to 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन, और कट ऑफ जो होती है वो यूजुअली 50% से भी नीचे होती है, 40% तक भी चली जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि करंट अफेयर्स नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, करंट अफेयर्स नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी अब, लेकिन इस वक्त वो सोचने का टाइम नहीं है। तो डोंट ओवर एम्फेसाइज करंट अफेयर्स। अब ओवर एम्फेसाइज बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं बोल रहा डोंट अंडर एस्टिमेट, मतलब इसको छोड़ ही दो कि करंट अफेयर्स कोई वैल्यू ही नहीं रखता। नो, ओवर एम्फेसिस नहीं करना। नहीं आता कोई बात नहीं, जितना आता है उतना पढ़ लो, और जितना नहीं आता लीव इट। अब जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल भी ओवर एम्फेसिस नहीं करना, और करंट अफेयर्स की वजह से अपने स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन भी गलत नहीं करना। ठीक है, ओके, ये तो हो गया कि क्या नहीं करना। 7 डोंट्स, प्लीज रिमेंबर देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ करना क्या है, करना क्या है। सबसे पहले चिल करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चिल करना है। चिल करने का मतलब ये नहीं है कल सुबह घूमने निकल जाओ पटनी टॉप या कहीं और बर्फ में स्नोफॉल मनाली निकल जाओ। नो, चिल करना मतलब कूल रहना है कि मैंने अच्छा पढ़ा है, मैंने थ्रू आउट हार्डवर्क किया है, अब जो मेरे को पढ़ना है, रिविजन्स करने हैं, उसमें आपकी एफिशिएंसी हाई रहे, अपने माइंड को कूल एंड काम रखो। चिल करने का ये मतलब है। चिल करने का ये मतलब नहीं है कि आप तो मूवीज देखने निकल जा रहे हो, चिल करने को बोला है तो एकदम पहाड़ियों में घूमने निकल जा रहे हो। नो, चिल करने का मतलब है स्टे काम। ठीक है, दूसरी चीज जो करनी है वो ये है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको क्या करो, रिवाइज कंसिस्टेंटली, रिपीटेडली, रिवाइज रिपीटेडली, बार बार रिविजन्स कर लो। ठीक है, और कभी कोई क्वेश्चन एब्रप्टली याद नहीं आता, डोंट पैनिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट रिवीजन से क्या होगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे सब याद आ जाएगा। अपने दिमाग को ये कहने ही मत दो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ये कहो तो अपने दिमाग से कि हाँ हमने दिन पूरे साल मेहनत की है, हमें सब आता है, एग्जाम में हमें सब याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट स्टडीज ऐसा होता है कि इस वक्त यू नीड टू फोकस ऑन हाई यील्ड एरियाज। व्हाट आर हाई यील्ड एरियाज? लाइक आपको पता है हर साल ज्योग्राफी में से 12 क्वेश्चन आना है, पॉलिटी में से 15 क्वेश्चन आना है, हिस्ट्री में से 15 क्वेश्चन आना है, इकोनॉमी में से 10 क्वेश्चन आना है। ये तो आपके हाई यील्डिंग एरियाज है ना, कोर एरियाज है ना। अब साइंस एंड टेक जो बिल्कुल भी
पता नहीं है, सिलेबस इतना वास्ट और वियर्ड है, क्वेश्चंस भी बहुत कम आ जाते हैं, तो उस पर भी फोकस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना, लेकिन हाई यील्ड एरियाज को, कोर एरियाज को पहले कवर करना है। और कोर एरियाज में भी सबसे इंपॉर्टेंट फोकस आपको स्टैटिक पोर्शन पे होना चाहिए, कि स्टैटिक तो आपका बिल्कुल किसी भी हालत में वीक ना रहे, लेकिन आप स्टैटिक पोर्शन को नए से पढ़ने नहीं लगना है। जो पढ़ा हुआ है, जो रेडी मटेरियल है आपके पास, उसको ही कंसिस्टेंट रिवीजन करना है, ठीक है। jugular vein of this examination I am now telling, solve MCQs, previous year questions and test series, okay, but please remember one thing, अपने आप को यहां पे एक डोंट इसके साथ ही बता रहा हूं, डोंट जज yourself on the basis of these results. Why? समटाइम्स एमसीक्यूज में टफ होते हैं गूगल पे या बाकी जगह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ठीक है, उस पे जज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी टफर लेवल बनाया जाता है, ताकि आप वो अगर सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में आपको इजी रहेगा। टेस्ट सीरीज का ये ज्यादा बेनिफिट होता है कि आप एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के लिए खुद को ट्रेन कर लेते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना, एमसीक्यू सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, लेकिन उनके रिजल्ट से खुद को डिमोटिवेट ना करना। डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ बाय देयर results, okay, don't focus on results of these, rather what you will do is try to take corrective actions if there are any findings that आपके पास ये चीजें problematic हैं, ये वाले areas problematic हैं, तो corrective actions चाहिए आपको। so focus on corrective actions, ओके। करेक्टिव एक्शंस में रिविजन्स, गलती क्यों हुई, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सही पढ़ना। गलती क्यों हुई, क्वेश्चन एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ने से ठीक हो जाता, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ा लेकिन बुलेट्स गलत मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये सारे करेक्टिव मेजर्स जो है ये लेने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, स्लीप वेल। स्लीप वेल का मतलब है 7 से 8 घंटे, ऐसा ना हो कोई 12-15 घंटे सो रहा है कि सर ने बोला स्लीप वेल, ओके। एंड ईट वेल। ईट वेल का मतलब अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि इस टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक, क्योंकि आपकी पूरे साल की मेहनत जो है वो इस वक्त दाव पे है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अगेन टेलिंग यू, 20 दिन से आपका फ्यूचर नहीं बदलने वाला। 20 दिन में कामनेस खो के, अनीज करके खुद को, अनईजी करके खुद को, रेस्टलेस करके, एंग्जाइटी करके आप नुकसान जरूर कर लोगे, ठीक है। इसलिए आपके पास एम्पल नॉलेज है, पूरे साल की मेहनत आपके पास है, उसको रिवीजन करो, उसका रेपिटेशन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और पूरी तरह से अच्छे से खुद को प्रिपेयर करो। अगर पेपर टफ हुआ तो सबके लिए टफ होगा, मेरिट थोड़ा सा लोअर साइड हो जाएगा। अगर पेपर इजी हुआ तो सबके लिए इजी होगा, मेरिट अपर साइड जाएगा, ठीक है। लास्ट एक और चीज, सीसैट को पैरेलली फोकस करना। जिनका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन स्ट्रांग है, रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग है, दे नीड नॉट टू वरी। जिनका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन वीक रहता है, थोड़ा सा वो लोग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी बहुत कम होती है, 40 to 50% बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी मानी जाती है, ठीक है। तो डोंट वरी, इट इज ओनली एन एग्जामिनेशन, और ये एग्जामिनेशन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। यही एग्जामिनेशन देके कुछ लोग सिविल सर्वेंट्स बन गए और उनको बाद में पता चला कि सिविल सर्विसेज उनका शायद रियल डेस्टिनेशन नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? तो एक जाते जाते एक शायरी सुनाता हूं आपको कि जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना इन्हें गौर से। जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना इन्हें गौर से। इन्हें मंजिलों पे खबर हुई है कि वो रास्ते कोई और थे। Get the point? So all the very best to you. Just keep yourself calm, hold your nerves. Everything is in your control. If you have done your bit, God will take care of your results. Thank you so much.